Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss again the basics of pharmacokinetics, and in pharmacokinetics we will discuss about the types of compartmental model. Although this topic has been briefly described, but are the different types of compartmental model today little bit more details, but in as a whole, the further details they will be coming in the coming chapters. तो हम इस चीज़ को आगे जो हमारे इंडिविजुअल चैप्टर्स आएंगे रिगार्डिंग द intravenous infusion, one compartment open model, intravenous bolus administration, one compartment open model, and then we will discuss extravascular administration, one compartment open model, two compartment open model. So all these things they will be discussed in details in the coming classes. And last time we discussed that there are two types of kinetics. Rather, we can say that there are two types of pharmacokinetics. One is called as the linear pharmacokinetics, and another one that is called as the non-linear pharmacokinetics. So हमारे पास दो pharmacokinetics हैं. The one that is called as the linear pharmacokinetics, the other one that is called as non-linear pharmacokinetics. तो पहली जो है हमारे पास linear pharmacokinetics है, and the other one that is called as the non-linear pharmacokinetics. तो इन दो types के ऊपर the whole pharmacokinetics कोर्स इट इज बेस्ड, यहाँ पे इसका बेस है और इसी को लेके हम डिस्कस करते हैं. और जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैं, वट एवर इज द ड्रग, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे बेसिकली फॉलो द लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स. हमारी ज़्यादातर ड्रग्स जो है लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, एंड देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस लाइक फेनिटाइन एंड एस्पिरिन इन एट हाई डोजेज एंड इंक्लूडिंग द अल्कोहल. They follow the non-linear pharmacokinetics. और non-linear pharmacokinetics में हमारा जो basic concept है that in this case the pharmacokinetics parameters such as the clearance, half-life and the volume of distribution, they become you can say the especially the half-life and the clearance, they become variable. ये variable होते हैं. They are basically dependent upon the dose के ऊपर depend कर रहे होते हैं. In case of non-linear pharmacokinetics, which is called as independent pharmacokinetics, the clearance as a pharmacokinetic parameter, the volume of distribution, and T half, they basically remains constant, independent of the dose. Whatever आप जो भी dose दें, in case of most of the drugs, the clearance will remain constant, volume of distribution will remain constant, and T half will remain constant. These things again they will be coming in the coming chapters, how to determine these parameters. And अगर आप किसी ड्रग को आईवी रूट से दे रहे हैं तो ओरल रूट से अगर आपने उसकी क्लियरेंस फाइंड आउट की है या वीडी फाइंड आउट किया है और यू हैव कैलकुलेटेड द हाफ लाइफ, दैट कैन बी यूज्ड इन द अदर यू कैन से द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि ये जो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी ड्रग के दे रिमेन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड विद द प्रीएम्बल फ्रॉम द linear and non-linear pharmacokinetics. The first topic is the intravenous bolus administration, one compartment open model. तो आज हम इसको वो कर रहे हैं डिस्कस थोड़ा सा briefly, but again we will discuss little bit more about other compartmental model, and then जब हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी बेसिक्स अबाउट अगेन द इक्वेशंस जो हम वो करेंगे. सो एवरीथिंग व्हेन इट विल बी कवर्ड, so then we'll be moving to the you can say the further details. Hum inshallah we will be discussing that. Okay, so the first is about the when you plot the data on the x-axis and y-axis. Be careful कि x-axis के ऊपर हम जब plot करते हैं data को, that is the dependent variable, और y-axis के ऊपर जो plot करते हैं that is the dependent variable like the concentration. And the x-axis के ऊपर जो plot करते हैं हम data, that is called as इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लाइक टाइम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम आपका पास हो रहा होता है, इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल फैक्टर, लेकिन टाइम कंट्रोल कर रहा होता है कंसंट्रेशन को. तो जितना ज़्यादा टाइम पास होता है इट गोज डाउन after administration. तो so the dependent variable is the on the y-axis, and x-axis के ऊपर independent variable like the time is independent variable, और हमारी concentration हुआ है that is called as the dependent variable. इसको हम कहते हैं dependent हमारा variable है. So that's why it is called as the dependent variable. And the x-axis के ऊपर that is called as the independent variable, हम इसको कहते हैं, that is the time. Okay.
और फिर आप जब इस प्लॉट को प्लॉट करेंगे, इट शुड बी ऑन सेमी लॉग ग्राफ पेपर। ये भी आपने इंश्योर करना है, इट शुड बी ऑन सेमी लॉग ग्राफ पेपर, जिसमें वो सेट्स होते हैं। एंड वी विल डिस्कस हाउ टू प्लॉट द डेटा ऑन सेमी लॉग ग्राफ पेपर। But for your information, just that it is on the sets and it should be present. Present. Yeah. You should present it on the x-axis and the y-axis. सेमिनार के पेपर के ऊपर जब आप इसको प्लॉट करते हैं, you will have the straight line. आपके पास जो straight line आएगी, if the straight line is there, there is no curve formation. So you should be very clear that this is about the, you can say, one compartment open model, और भाई ये कॉमन कंपार्टमेंट है। और इफ इट इज, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी क्विक, इतनी क्विक हुई है कि वो जो कर्व हुई, फॉर्मेशन हुई है, इट इज स्ट्रेट। और ड्रग ने इमीडिएटली उसने एलिमिनेट होना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कर्व स्ट्रेट आई है आपकी। सो दैट्स वाई द, यू कैन से द डिस्ट्रीब्यूशन इज सो क्विक that there is no curve formation, and the curve is very straight, and this represents the elimination phase, because जब आप IV route से drug देते हैं, drug is there in the blood and it is ready to be circulated in the blood, systemic circulation में। और जब आप drug देते हैं, there is maximum concentration at the time zero, क्योंकि drug body के अंदर सारी चली गई है, तो at time zero पे maximum concentration होती है। एंड देर इज नो अब्जॉर्प्शन फेज, जब आप आईवी रूट से देते हैं, जब आप इंट्रावेस्कुलर रूट से देते हैं, चाहे इंट्राआर्टेरियल हो, वट एवर इज द रूट, so there is no absorption phase when you are giving the drug by intravascular, or you can say the intravenous route से जब आप जो भी drug देंगे, because drug is available 100% in the blood, so there is no absorption की अगर आप definition देखें, this is the transfer of drug from the site of administration to the systemic circulation. That's why there is no absorption phase in this case. And again, the straight line shows rapid distribution and instantaneous distribution. So it is represented by this curve, this equation, and this is the basically equation. आप किसी भी टाइम पे अगर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं और आपने ड्रग आईवी बोलस फॉर्म में दी है, तो दिस इज द इक्वेशन, यू कैन यूज दिस इक्वेशन, Cp is equal to Cp naught e raised to power minus Kt. So there Cp is basically the concentration at any time, and Cp naught is the concentration at zero time, जो ही आपने ड्रग दी, that is zero time, and Kt is the elimination rate constant, और इसका elimination rate constant, again we will discuss this thing in details, is the पर आर इसका वो होता है, जो यूनिट होता है, पर यूनिट टाइम इसका वो होता है, पर मिनट भी आप कह सकते हैं, पर सेकेंड भी आप कह सकते हैं। सो दिस इज द फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन है, जब हम इसको फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि यानी कि पर यूनिट टाइम में कितनी ड्रग एलिमिनेट होती है as a fraction, that is called as elimination rate constant. So again, these things will be coming to is any time when that you are going to collect the blood, जब आप blood को collect करते हैं, and you can see कि ये before the administration the this is the color, but when the drug is given, the color become changed, so a little bit darker, so that means that drug is distributed inside the body. And the question whether all the organs they contain same concentration of drug, the answer is no, ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, एंड दिस शुड नॉट बी देयर, क्योंकि कुछ ड्रग की, कुछ टिश्यूज की एफिनिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, बट द although it is shown कि ये ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुई है, हर जगह पे इक्वल है, बट इट इज़ नॉट देयर, ये इक्वल नहीं होती, कुछ ऑर्गन्स में ज़्यादा होती है, कुछ, बट द मेन पॉइंट इज, द मेन एजेंडा इज that the distribution of drug is very quick. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इतनी क्विक होती है, यू गेट द स्ट्रेट लाइन, आपके पास स्ट्रेट लाइन, ये देखिए आप, दिस सेमिलर ग्राफ पेपर, दिस रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर, रेक्टेंगुलर के ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप प्लॉट करते हैं, तो दिस काइंड ऑफ कर्व यू विल अचीव, एंड इन केस ऑफ द सेमिलर ग्राफ पेपर द कर्व इज वेरी स्ट्रेट, आपके पास स्ट्रेट कर्व आती है। सो दीज थिंग, व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, व्हाट इज द हाफ लाइफ, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू यूज दिस स्टफ, we will again discuss in details in the coming classes. Okay, so let's move to because this is the brief, next move to the intravenous bolus administration, two compartment open model। ये इसमें भी ड्रग को हम एक सिंगल बोलस देते हैं, वन टाइम देते हैं, बोलस मीन्स वन टाइम, एंड द ड्रग फॉलो द टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। एंड अगेन द कंपार्टमेंटल मॉडल का जो कंसेप्ट है, लास्ट लाइक मैंने डिस्कस किया था,
उसका कंसेप्ट ये है कि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग दैट बेसिकली डिटरमिन द ड्रग विल फॉलो वन कंपार्टमेंट और टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक ड्रग की होती है। ड्रग के अंदर अपनी कोई वो नहीं होती कि या दिस इज द ड्रग दैट विल फॉलो द वन कंपार्टमेंट और टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। दिस इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग। उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने आईवी बोलस दी, सिंगल डोज दी, अगर आपकी कर्व के अंदर स्ट्रेट नहीं आ रही है एंड देयर इज कर्व फॉर्मेशन दैट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट मींस दैट ड्रग इज फॉलोइंग नॉट द कंपार्टमेंट वन कंपार्टमेंट और ओपन मॉडल, देयर इज समथिंग एल्स दैट इज हैपनिंग दैट इज डिक्रीजिंग। वो कर्व के इसमें आप देखें तो उसको स्ट्रेट डिक्रीज होना चाहिए था। लाइक ये कर्व आपकी थी, आई मीन ये आपका होता एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसको स्ट्रेट अगर आ रही तो कोई मसला नहीं था। दिस वाज द यू कैन से द one compartment open model, but if there is curve formation it means this is not one compartment open model, there is distribution, कोई curve इधर यहाँ पे बन जाती है। Let's see, moving to the next slide where we will show the आपको वो graph I will represent. So the straight line appears only after the equilibrium is achieved। आपका कर्व जब बनती है उसके बाद स्ट्रेट लाइन भी आती है। तो स्ट्रेट लाइन जब आती है तो इट मींस द इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन अचीव्ड, नाउ देयर इज ओनली द एलिमिनेशन फेज। तो जब डिले इक्विलिब्रियम अचीव होता है दैट इंडिकेट्स द स्लो डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बहुत ज़्यादा क्विक डिस्ट्रीब्यूशन होगी वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, अगर डिले हो जाए तो इट मींस देयर इज टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, दैट इज बेसिकली द एक्यूरेट टू डिसाइड। आपके लिए डिसीजन लेना वहाँ पे ईजी होता है। The equation, we will again that discuss these things in details. This is the equation that is called as CP। किसी भी टाइम पे आप कंसंट्रेशन टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल को फाइंड आउट करना चाहते हैं, दिस इज द इक्वेशन। आप इसको यूज करेंगे एंड and a a and alpha, that these are the parameters that are associated with the distribution, and b and beta, they are the parameters that are associated with the post distribution जिसको हम कहते हैं उसके साथ associated है। again these things will be coming again जब हम इसको फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग यू शुड बी केयरफुल। ए एंड अल्फा दे आर एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, एंड बी एंड बीटा दे आर एसोसिएटेड with the post distribution phase. So here you can see कि जहाँ पे drug there is no drug, once you have drug, this is the drug, these are the organs that are that receive the blood and these are highly perfused tissue। आप देखें कि ये highly perfused tissue में आते हैं that receive the blood। आप जहाँ पे blood की receive हुई है, so kidney, heart and all the organs that are highly perfused with the blood, आपके liver हो गया, इवन ब्रेन के अंदर ड्रग की क्विक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो द वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल दैट इज बेसिकली द here it is the two compartment open model because drug is first distributed into these organs then slowly distributed into other organs, so that means that this is two compartment open model by graphical representation। अगर आप इसको ग्राफिकली देखें, इन प्रिंसिपल जब हमारी फर्स्ट वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल को फॉलो कर रही थी, इट शुड बी द स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट आना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट इधर से शुरू हुई है, ये क्यों हो रहा है? सो इट मीन्स कि इस ये स्टेट ऐसे आती तो कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती, लेकिन ये कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि ड्रग एलिमिनेट भी हो रही है और ड्रग किसी और जगह पे भी जा रही है, जिसकी वजह से ये कर्व डाउन जा रही है। ये देखें आप, ये कर्व डाउन जा रही है, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग एल्स दैट इज हैपनिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज देयर इन केस ऑफ टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। तो टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के केस में देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की इज देयर। ओके, सो द डिस्ट्रीब्यूशन, दिस फेज रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन, ये फेज आपका डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड हियर इज ओनली द एलिमिनेशन। ये देखें कर्व स्ट्रेट हो गया एंड इट मींस द इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, नाउ ड्रग इज रेडी टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे क्या एलिमिनेशन नहीं हो रही थी? यस, एलिमिनेशन स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, बट देयर इज ए फेज दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही होती है, तो दोनों चीजें एट द सेम टाइम दे आर देयर। Okay, so the next is about the, you can say the extravascular administration, one compartment open model. When you give the drug by extravascular route, that could be orally, that could be intramuscular, that could be intraperitoneal, that could be any other route apart from intravascular, intraarterial or intravenous, that is called as extravascular route of administration। आप किसी भी रूट से दें, इंट्रामस्कुलर दें, आप ओरली दें, आप सबलिंगुअल दें, आप रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन से दें, so there is a process of absorption, उसमें absorption होनी चाहिए, and the 100% drug should not be bioavailable।
ड्रग को अवेलेबल नहीं होना चाहिए 100% लाइक इन द प्रीवियस, ये आई मीन के इंट्रावेनस बोलस फॉर्म में जब आप देते हैं, आईवी देते हैं, तो देर 100% ड्रग दैट इज बायो अवेलेबल। एक दो चीज, दूसरी चीज जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज अब्जॉर्प्शन फेज। इस केस में जो एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन है, देयर इज अब्जॉर्प्शन फेज दैट इज प्रेजेंट, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे आप देखें ये कर्व जो है इट इज गोइंग अप, एंड जो हमारी आईवी बोलस फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन थी, द कर्व वाज गोइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन टू स्ट्रेट, इट वाज गोइंग डाउन, यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी। बट इन दिस केस क्योंकि आप सपोज कि आपने ओरली ड्रग दी है एंड इट इज द कैप्सूल और द टैबलेट, अब जब इसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग की अब्जॉर्प्शन होती है, एंड इट टेक्स टाइम फॉर द ड्रग टू रीच एट हाईएस्ट कंसंट्रेशन, इट टाइम लेती है क्योंकि ओरली आपने दी हुई है। सो दिस काइंड ऑफ कर्व इफ इट इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज द, यू कैन से द एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ से कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि दिस इज द वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। यहाँ पे आप देखें ये ड्रग की अब्जॉर्प्शन है, एंड एट टाइम जो पीक इसका आता है यहाँ पे इसका जो पीक टाइम, और इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसी जगह पे है। तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन दे बिकम इक्वल, यहाँ पर सॉरी अब्जॉर्प्शन एंड द एलिमिनेशन दे बिकम इक्वल, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन और जो हमारी elimination, they become equal, and then the curve almost all is become straight. It means after the drug is absorbed, this is absorption is equal to elimination, it is the straight curve नहीं आ रही यहाँ पे, तो कर्व नहीं आ रही, it means the drug is following the one compartment open model using the extravascular administration। आपने ड्रग को extravascular दिया क्योंकि ये कर्व स्ट्रेट हो गई। अगर यहाँ पे कोई इस तरह कर्व बन जाती, कर्वी लीनियर, then it means when the absorption is completed, there is something else that is going to be for the decrease in drug concentration। कोई और चीज है जो हो रही है जिसकी वजह से ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। सो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इन दैट केस टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। लेकिन यहाँ पे कर्व कोई वो ऐसी नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। इसको हम वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल कंसिडर करते हैं। सो एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, so again, this is the concentration and this is the time, and the data is plotted on Semilog graph paper. ये Semilog graph, पिछला भी this is plotted on Semilog, आप Semilog graph के ऊपर plot कर रहे हैं, यानी कि for your information, basically the Semilog graph paper कैसे होता है, we will discuss again in details, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे या हम ग्राफ को पहले प्रेजेंट करेंगे, so that it is easy for you to understand. Okay, so in this case there is absorption. Yes, there should be absorption. There should be elimination. Elimination भी होनी चाहिए. Distribution is very quick. तो यहाँ पे ये दो phase होते हैं. The only one phase is present, that is called as the absorption, and हमारे पास by exponential equation we have by exponential equation, हमारे पास by exponential equation अचीव होती है, और वो equation जो है किसी भी टाइम पे अगर कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, that is equal to कोई भी टाइम है, टाइम 0 to infinity, आप just you put the key a f x naught, जो dose that is bioavailable, I mean the fraction of drug that is bioavailable, कि जो आपकी डोज जो का जो फ्रैक्शन है, अगर I mean, this is the 90% of the drug is bioavailable in the systemic circulation. So in that case, the F will be equal to 0.9 आपका हो जाएगा. अगर 50% drug is bioavailable, the F will be 0.5. So the F basically it represents the absorbable fraction. The x naught is the dose जो आपकी dose है, k is the absorption rate constant, again ये constant है absorption क्योंकि इसमें absorption का element involved है, that's why it is called as the absorption rate constant. V is the volume of distribution, it remains constant. K is the elimination rate constant, and this is again the absorption rate constant. This is the again elimination rate constant, time at which you want to determine the drug concentration. So all these parameters they are basically linked with the equation के साथ by exponential है, extravascular route है, single यानी कि one compartment open model को follow कर रही है. So this is all about those things, and let's move to the next slide. Very brief post absorption, sorry, इसकी जो दूसरा पॉइंट है पोस्ट absorption में just there is you can say the elimination का phase exist करता है, और ओवरऑल आपके पास बाई एक्सपोनेंशियल जो इक्वेशन होती है यू विल अचीव दैट। ओके, सो द नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट। एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट है दैट इज देयर एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल।
को हम डिस्कस करें। अब यहाँ पे आप देखें सेम, इन केस ऑफ वन कंपार्टमेंट एंड टू कंपार्टमेंट दिस कर्व इज वेरी सेम टू ईच अदर, ये दोनों सेम है यहाँ पे पीक तक आते, लेकिन यहाँ पे ये कर्व जो है ये ऐसे डाउन जाती है और फिर ये सीधी हो जाती है। सो इट मीन्स देयर समथिंग दैट इज हैपनिंग, इसको ऐसे आना चाहिए था इन प्रिंसिपल ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं आई, इसमें कर्व दिखाई है। सो दैट इज कॉल्ड एज दैट देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड देयर इज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दो फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज के साथ, जो पैरामीटर एसोसिएटेड है यू शुड नो, एंड द पैरामीटर दैट आर एसोसिएटेड विद पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज द बीटा, वो भी आपको पता होना चाहिए। इन इक्वेशन आप इसकी फर्दर हम उसको डिस्कस करेंगे, देयर विल बी थ्री यानी कि एक्सपोनेंट्स, इसमें तीन एक्सपोनेंट आएंगे, एंड अगेन दीज थिंग्स विल बी डिस्कस इन डिटेल। सो द कर्व फॉर्मेशन बेसिकली रिप्रेजेंट्स the drug is following two compartment open model, and this increase in drug concentration with time it represents the drug is given by extravascular route। कोई भी रूट होता है चाहे ओरली है चाहे सबलिंगुअल है इंट्रावेस्कुलर है, यू कैन यूज दिस इक्वेशन, हम ये डायग्राम यूज कर सकते हैं, नो नो प्रॉब्लम। Okay, so the next is about the this basically represent the absorption, ये आपको absorption भी represent करता है यहाँ पे, it represent the this phase represent the distribution and it represent the elimination। तो ये जो कर्व होती है आपकी absorption distribution and the elimination को शो कर रही होती है, it represents absorption, it represents the distribution and post distribution phases। द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताती है कि देयर इज टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन क्विक होती और ये कर्व ना होती देन इट वुड बी वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। ओके, सो इसमें जो अगेन द एक्सपोनेंशियल टर्म्स आएंगी इसकी इक्वेशन में, थ्री एक्सपोनेंशियल टर्म्स, वी विल डिस्कस these things in detail in the coming lecture। एंड द कंपार्टमेंट की जो डेफिनेशन है मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ कर दूँ, दीज आर द थ्योरेटिकल मॉडल एंड दे एक्चुअली नॉट द फिजियोलॉजिकल, ये बेस्ड इतना नहीं करते फिजियोलॉजिकल के ऊपर, सो दे आर मोस्टली द थ्योरेटिकल मॉडल। ओके, एंड वी यूज द इक्वेशन। हम अगर आप यानी कि इफ यू आर सेइंग कि आपकी ड्रग एक मॉडल को फॉलो कर रही है और उसकी डायग्राम उस तरह फिट नहीं हो रहा, इट मींस ड्रग इज नॉट फॉलोइंग दैट मॉडल, यू हैव टू चेंज द मॉडल। आपको उसको जब आप कर्व उस तरह फिट नहीं हो रही, इट मींस कि ड्रग उस मॉडल को फॉलो नहीं कर रही। So if a model failed to fit the plasma concentration data, a different model should be selected। जब आप डिसाइड करते हैं यस माय ड्रग इज फॉलोइंग द वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एंड इट इज गिवन बाय एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट, लेकिन वो कर्व बताती है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर and this is a slow distribution, there is curve formation, you have to select another compartment model to describe very accurately about this compartment open model। So that and this selection of compartment model helps to calculate the dose and it is very important in clinical prediction। हमारे clinical prediction में बहुत ज़्यादा important है क्योंकि इसी मॉडल की बिहाफ पे we calculate the dose of drug, and again these things will be coming in details in the coming जब हम इनके separate chapters को discuss करेंगे। Okay, so this is you can say the summary of today's lecture, and you are giving the drug into the system, and that system you can give the drug by intravascular route or intravenous route, or you can give the drug by extravascular route. It's up to you. And after there is distribution, and in case of you can say the extravascular route, there should be the absorption. Absorption होनी चाहिए, otherwise there should be the distribution। एंड यू कैन से द इस कर्व से आपको पता चलता है अगर कर्व आपकी ऐसी आ रही है, देयर इज नो यू कैन से द एब्जॉर्प्शन, बट इफ द कर्व इज गोइंग फ्रॉम द down to up, it means there is absorption is present। So then you analyze the data based on your analysis, you can define that this is one compartment open model or two compartment open model, and then based on this information you basically decide that this is द वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। ड्रग आपकी वन कंपार्टमेंट को फॉलो करती है तो उसकी डोज भी होनी चाहिए। इसके अगर क्लियरेंस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, देन दैट शुड बी द डोज, ईच का क्या इफेक्ट है। सो ऑल दीज थिंग्स इन केस ऑफ द पेशेंट के जो पैरामीटर्स है अगर वो इफेक्टेड है तो फिर क्या होगा डोज की सिलेक्शन। सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द dose calculation। Hopefully, we will try our best in the coming classes to to basically elaborate all these things in detail। Okay, thank you very much,
And please subscribe our channel and like our channel and share it with your friends so that many students they can get benefit of these very basic things, so that कि जो हम इसके फर्दर डिटेल में चीज़ें डिस्कस करें, the student can benefit out of this presentation or this lecture. Thank you very much again.